مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا باپ کی تعریف کرتے ہیں۔ مبارک ہے ہر ایک جو خدا سے ڈرتا اور اس کی راہوں پہ چلتا ہے، تو اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا۔ تو مبارک اور سعادت مند ہوگا۔ خدا تجھے کامیاب کرے گا، ہر جگہ پہ، ہر مقام پہ وہ کامیاب ہوگا جو خدا کی راہوں پہ چلتا ہے، جو خدا کی مرضی پہ چلتا ہے اور جو خدا کا فرما بردار بیٹا بیٹی بنیں گے۔ اسی طرح آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں جو زبور 113 اس کی 9 آیات میں یوں لکھا ہوا ہے، یوں محکوم ہے کہ وہ بانجھ کا گھر بساتا ہے، وہ اسے بچے والی بنا کر شاد کرتا ہے۔ پاک کلام پر جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو، خدا کی حمد کریں کیونکہ وہی حمد اور قدرت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ بائبل مقدس میں اولاد کو خدا کی بخشش اور برکت کا نشان سمجھا جاتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں گنتی اس کا 3 باب اس کی 11 میں لکھا ہے، کیونکہ جو سب پلوٹے میرے ہیں، اس لیے کہ جس دن میں نے ملک مصر میں سے سب پلوٹوں کو مارا، اسی دن میں نے بنی اسرائیل کے سب پلوٹوں کو، کیا انسان اور کیا حیوان، اپنے لیے مقدس کیے، سو وہ ضرور میرے ہوں، میں خداوند ہوں۔ وہ کہتا ہے جو تمہارے پہلے پھل ہے، پیٹ کا پھل ہو یا زمین کے پھل ہوں، وہ سب میرے ہیں۔ پہلے پھل جو ماں کے بچہ، پہلا بچہ ہو، چاہے وہ بیٹی ہو چاہے وہ بیٹا ہو، وہ کس کا ہے؟ وہ خدا کا، کیونکہ قدیم زمانے میں معاشرے میں پلوٹوں بیٹوں کو خاندان میں بڑی خاص مقام حاصل تھا۔ اس لیے خدا نے موسیٰ سے کہا کہ اسرائیل کے پلوٹے بیٹے اور چپاہیوں کے بچے خدا کی عزت اور خدمت کے لیے مخصوص کیے جائیں یا الگ کیے جائیں۔ اسی لیے جو پلوٹے بچے ہوتے تھے وہ خدا کی خدمت کے لیے دیے جاتے تھے، اور آج بھی یہی ہے۔ جب خدا کہتا ہے کہ وہ میرے ہیں، سب تو خدا کے، ہم سب چاہے پلوٹے ہوں، سارے جتنے بھی بچے ہیں جو خدا کی طرف سے جو خدا دیتا ہے وہ خدا ہی کی تو ہیں، یہ رحمتیں برکتیں خدا کی ہیں۔ اسی طرح جس طرح ہم نے یرمیہ کے 29 چیپٹر میں دیکھیں تو وہاں خدا کہتا ہے کہ شادی کرو، بچے پیدا کرو تاکہ تمہارا نام دنیا میں بڑھے۔ جو خداوند ہمارا خدا وعدوں کا سچا ہے، جو اس نے وعدے پورے کیے ہیں، وہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے میں قادر ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اگر ہم دیکھیں اسی طرح زبور 28 کی 3 آیات میں دیکھیں تو تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار طاق کی مانند ہوگی، وہ تیری اولاد تیرے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند۔ دیکھو ایسی برکتیں اسے ملیں گی جو خدا سے ڈرتا ہے۔ خداوند صیون میں سے تجھے برکت دیتا ہے اور عمر کی درازی بحال کرتا ہے، عمر کی درازی دیتا ہے، کیونکہ ہمارا خدا وعدوں کا سچا خداوند ہے، جس نے ابراہیم سے سب سے وعدے کیے وہ انہوں نے پورے کیے۔ اگر ہم زبور 132 میں دیکھیں 132 میں تو لکھا ہوا ہے کہ خداوند نے سچائی کے ساتھ داؤد سے قسم کھائی ہے، وہ اس سے پھرنے کا نہیں، کہ تیری اولاد میں سے کسی کو تیرے تخت پر بٹھاؤں گا۔ اگر تیرے فرزند میرے عہد اور میری شہادت پر جو میں ان کو سکھاؤں عمل کرے، تو ان کے فرزند بھی ہمیشہ تیرے تخت پر بیٹھے رہیں گے۔ پریز دی لارڈ۔ یہ خدا کے وعدے ہیں۔ یہ وعدے اگر آج ان نبیوں کے ساتھ تھے تو یہ کلام آج ہم سب کے لیے ہے۔ ہم سب کے لیے یہ وعدے ہیں کہ جب خدا ہمیں یہ برکات سے نوازتا ہے، رحمتوں سے نوازتا ہے، تو ہمیں بھی خدا کے حکم کے مطابق وہ خدا کے ہی ہیں، سب خدا کی حضوری میں رکھ دیں، چاہے وہ پلوٹا تو خدا کہتا وہ کہتا میرا ہی ہے، تو اسے اس کے حضوری میں رکھ دینا ہے، تو باقی بھی اسی کے ہیں۔ ہم جو بھی خدا رحمتیں دیتا ہے خدا کی حضوری میں رکھنے، باپ جی آپ ہی نے دیا اور آپ ہی کا ہے، تاکہ یہ آپ ہی کے نام کے لیے استعمال کیا جائے، آپ ہی کی خدمت کرے، کیونکہ وہ خدا کے حکموں کو چلے گا، مانے گا۔ اگر ہم شروع سے ہی بچے کی تربیت کریں گے تو خدا کے حکموں کو مانے گا۔ اگر ہم زبور
52 की 8 में देखें, लेकिन मैं तो खुदा के घर में जैतून के हरे दरख्त की मानीद हूँ। प्रेज द लॉर्ड। वो इस तरह हरा भरा दरख्त होता है जिस तरह, तो कितना अच्छा लगता है हरा भरा दरख्त। अगर वो सूखा होता है तो वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसी तरह जब इंसान भी हर चीज़ से मुनव्वर होता है, हर बरक़ात से भरा रहता है, तो वो भी इसी जैतून की दरख्त की मानित हरा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। खुदावंद हमें हिकमत दे, क़ुव्वत दे, ताकि हम जब खुदा हमें ये रहमतें बरकतें दें तो हम सिर्फ़ खुदा को दे दें, क्योंकि ये खुदा ही के हैं और खुदा ने ही हमें इन बरकतों से नवाजा है। और हम उनकी तरबियत ऐसी करें कि जो खुदा के कलाम के मुताबिक हो। खुदा का वादा है कि जो बच्चे मुझे, जिस तरह उसने दाऊद से अभी हमने पढ़ा कि वादा किया था कि अगर मेरे हुक्मों को मानते हैं, मेरी मर्ज़ी पे चलते हैं, तो खुदा कहता है कि मैं हमेशा उनके साथ रहूँगा, मैं उन्हें सरफराज करूँगा, मैं उन्हें सर बुलंद करूँगा। ये बाप के वादे हैं, उसके सच्चे वादे। हमने सिर्फ उस वादों पे खड़े हो जाना है, उस कलाम को ले लेना है, ताकि खुदावंद जो हमारा ज़िंदा खुदावंद है वो हमें हमेशा हरी हरी चरागाह पे ले जाता है, वो हमें हर राहत के चश्मों के पास ले चलता है, हमें वो किसी चीज़ की कमी होने नहीं देता, क्योंकि वो हमारे साथ रहता है। जब हम उसे खुश रखते हैं, उसके हुक्मों को मानते हैं, तो जिस तरह दुनियावी बाप अपने बच्चों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होता है, हर चीज़ करता है, लेकिन जहाँ बच्चे नाफरमानी कर लेते हैं, माँ बाप का हुक्म नहीं मानते, तो वो बच्चे माँ बाप के दिल से भी उतर जाते हैं और दूर भी हो जाते हैं। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता अगर हम खुदा के हुक्मों को नहीं मानते, उसकी मर्ज़ी पर नहीं चलते, तो वो भी हमें छोड़ देता है, क्योंकि हमारा खुदावंद किसी से ज़बरदस्ती नहीं करता, वो ज़ोर और ज़बरदस्ती नहीं करता। उसने हमें राहें दिखाई हुई हैं, एक रास्ता जो सीधा उसकी तरफ चलता है, हमने उस पर चलना है। उसने रास्ता दिखा दिया, उसने ये नहीं कहना कि चलना है, उसने बता दिया तुमने चलना है। एक दफ़ा करता है, 2 दफ़ा तंबी करता है, हदायत करता है हमें। अगर अपने मोहब्बत करने वालों से वो तंबी करता है, बाप तो हमेशा ही अपने बच्चों से मोहब्बत करता है, उसने तो कभी अपने रिश्ते को बदला ही नहीं। उसकी शफ़क़त तो हज़ारों हज़ार साल वो बाप था, बाप ही रहा, और उसकी शफ़क़त भी ऐसी रही है। आए हम अपने आप को पूरे तौर पर अपने बच्चों के साथ खुदावंद की हज़ूरी में आते हैं, ताकि हम सब जैतून के बाग की मानिद हों, हम सब हरे भरे हों, और खुदावंद हमें भी देख के खुश होगा। जब हम खुश होते हैं ना, तो वो भी खुश होता है, क्योंकि वो हमारा बाप तो सिर्फ हमारी खुशी पूरी करना चाहता है, वो तो हमें खुश देखना चाहता है, वो तो हमें हमेशा खुश देखना चाहता था। उसने तो हमें बनाया ही इसलिए था, हर चीज़ दी थी, हर सहूलत दी थी कि ना काम करो, बस सब चीज़ें थी। बाग में हर तरह का फल और फ्रूट था, ना मेहनत करने की ज़रूरत थी, ना कुछ करने की ज़रूरत थी, लेकिन ये सिर्फ हुआ गुनाह के वसीले से, कि गुनाह दुनिया में आया और ये सब कुछ होगा। गुनाह आया तो मौत भी आ गई, क्योंकि गुनाह की मजदूरी तो मौत है ना। और हमारा बाप तो फिर भी हमें तंबी कर 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 हमें समझाना चाहता है कि बेटा छोड़ दे इस रास्ते को, ये रास्ता अच्छा नहीं है। वो किसी तरह भी हमारे साथ भलाई करता जाता है, वो हमारे बुराई से भी भलाई को निकाल लेता है। इतना मोहब्बत करने वाला खुदा हम सब से बहुत मोहब्बत करता है, और वो हमेशा हमें बचाना चाहता है, वो हमेशा हमें छुड़ाना चाहता है, इसलिए कि वो हमसे मोहब्बत करता है। उसकी मोहब्बत लासवाल है। आए अपनी आँखों को खोलें, अपने कानों को शिनवा करें, ताकि उसका कलाम सुनो आज खुदा का कलाम सुनो, कि उसने जो बच्चे चीज़ें फल दिए हैं, बेटे बेटियां दी हैं, ये सब उसी के हैं, हमारा कोई फ़क्र नहीं। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि बेटे बाप के और दादों का फ़क्र है, ये सब खुदा का फ़क्र है। जो बाप दादों से वादे किए गए थे, खुदा ने वो पूरा किया। जो इब्राहिम से वादे पूरे किए थे, जो इसहाक से वादे किए थे, जो खुदावंद ने दाऊद से किए थे, वो सारे वादे खुदा ने हम सब के लिए, उसकी मोहब्बत रखने वालों के लिए पूरे किए। तो हमें सिर्फ कलाम लेना है और कलाम पे खड़े हो जाना है, और अपने बच्चों को अभी से कलाम सिखाएं। ये ना सोचें, देखें हम हम सीखते हैं कि हमारे यहाँ लंदन में बच्चे 2-2 साल के 3-3 साल के होते हैं, तो वो यहाँ और
मस्जिद में लेके आते हैं, बच्चों को कलाम सिखाते, छोटी छोटी बच्चियों ने मतलब जो भी है, जो उनका कल्चर वो बच्चों को लाते हैं सिखाने के लिए। आज हमारे बाप, हमारा बाप ज़िंदा है, उसका कलाम ज़िंदा है, ये रोशनी है। हमें अपने बच्चों के लिए भी इस कलाम को ले लेना है, हमें भी सिखाना है, बचपन से ही सिखाना है। हमारे लाडली कौम है, अभी तक हम इतने बड़े हो गए हैं जी, संडे ਨੂੰ ਅਸੀਂ चर्च जाने हैं, हाँ जी घंटे ਲਈ जाने हैं, ठीक है, बस इतना ही है, आज तक इतना ही, वहीं खड़े हैं, वहीं खड़े हैं, वहीं हैं, अभी तक बदले नहीं हैं। नहीं जी हम जाते तो ज़रूर हैं चर्च। अरे अभी जाते हो तो दिन में कितनी दफ़ा खाना खाते हो, ये सोचो कि हमारी ग़िज़ा भी तो कलाम है ना, यही तो हमारी अबदी रोटी है जो आसमान से हम सब के लिए उतरी है। ये ताज़ा मन भी तो हमने लेना अपनी रूह के लिए, पेट के लिए, जिस्म के लिए तो हम दिन में 4 दफ़ा 5 दफ़ा भी खा लेते हैं जी। ये चाय के साथ हो रहा है, ये जी लंच है, ये डिनर है, ये ब्रेकफास्ट है, ये बस ऐसे ही मेहमान आ गए उनके साथ बैठ के ये रोटियाँ खा खा के हम थकते नहीं। वो बड़ी भूख लगी है जी, जान निकलन रही है, और ये जान निकल रही है तो ये रूहानी रोटी भी तो खा लो, ये भी कौन खाएगा। ये वक्त है, आज ये रोटी खाने का वक्त है, इस रोटी को ले लो और तरबियत शुरू से ही अपने बच्चों में डाल दो। ज़रूर है कि आपके बच्चे में कलाम में डाला जाएगा तो वो कहीं भी चले जाएंगे, अगर शैतान लेके भी चला जाएगा ना तो ये कलाम जो बचपन में डाला जाएगा वो वापस आएंगे, वो वापस आएंगे। मैं आपसे कहती हूँ वो वापस आएंगे, वो मल्टीप्लाई होकर वापस आएंगे। खुदा के लिए आज इस कलाम को ले ले, क्योंकि कलाम सच्चा और बरहक है। यही हमारी बुनियादें हैं, हमने अभी से अपने बच्चों में डाल देनी है। हमें सिखाना है कि कलाम के सिवा हम कुछ नहीं। अगर हम रोटी इतनी दफ़ा खाते हैं ना तो ये रोटी भी दिन में सुबह भर के, पेट भर के खा लो, हैवी नाश्ता कर लो, ताकि शाम तक फिर आपकी रूह भूखी ना हो, और फिर रात को सोते हुए आखिरी डोज ले लो, ताकि खुदावन हम सब पर रहम करे। खुदावन मैं सब के लिए यही दुआ करती हूँ बाप, जो अभी तक आपकी मोहब्बत से ना वाकिफ है बाप जी, जो जानते ही नहीं। हमारा खुदा तो मोहब्बत है, और उसने इतनी मोहब्बत कर दी कि अपना आप हमारे लिए कुर्बान कर दिया। वो खुद इंसान बन के दुनिया में आ गया ताकि मुझे और आपको और मेरे बच्चों को और हमारी नस्लों को बचा ले। तो ये कलाम ही है जो हमारे पास है, यही कलाम है जो हमारी नस्लों की और हमारी रहनुमाई करेगा। हमें सिर्फ इसका ज़िंदा कलाम को ले लेना है ताकि हम सब छुड़ाए जाएं, ताकि हम सब बचाए जाएं। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से हमें बरकत दे। आज कोई बेटा बेटी खाली ना जाए, बल्कि झोलियां भर भर के जाए। और इस कलाम में कुदरत है, ये कलाम जब हम ले जाएंगे तो हम शिफा पाएंगे, हर तरह की शिफा। इस कलाम में हर तरह की शिफा है, रूहानी शिफा है, जिस्मानी शिफा है, हमारे दुखों की, तकलीफ़ों की, बीमारियों की शिफा है, गुर्बत की शिफा है। जब ये कलाम हम ले लेंगे तो हमें पता होगा कि कौन सी आयत में लिखा है, कहाँ लिखा है कि गुर्बत मेरा हिस्सा नहीं, कहाँ लिखा है कि खुदा ने कहा मैं तुझे मल्टीप्लाई करूँगा, कहाँ खुदा ने कहा कि बादशाही को ढूंढ ले, बाकी सारी चीज़ें मैं तुझे इनाम में दूंगा। ये तब होगा ना जब हम कलाम पढ़ेंगे। और ये एक ही कलाम दुनिया में रहने का एक तरीका है, क्योंकि खुदावन बादशाह है। एक स्टोरी की तरह पढ़ ले कि खुदा ने किस तरह दुनिया के, एक बादशाह ने दुनिया किस तरह बनाई और किस तरह उसने अपने असूलों को रखा, रूलों को रखा। इस कलाम में सब कुछ है। वो हमारा बादशाह जो जिंदा खुदावंद खुदा है, और ये जिंदा स्टोरी है, ये कहानी जिंदा है, ये कहानी खुदा का कलाम हमारे लिए जिंदा कलाम है। सिर्फ इस स्टोरी को पढ़ लें, स्टोरी के तौर पर ही पढ़े तो सही, देखें कि किस तरह कलाम, हाँ ये स्टोरी आपकी ज़िंदगियों को बदल देती है, ये किस तरह कलाम आपको निखार देता है। यही कलाम रोशनी है, यही हमारे कदमों की रोशनी है। हमें इस रोशनी में चलना है। खुदावन जितने भी आज यहाँ कमज़ोर बैठे हुए हैं, जो जानते नहीं कि ज़िंदा ही शाफी है, वही शिफा देता है, क्योंकि उसमें शिफा है, उसके नाम में शिफा है, उसकी कुदरत में शिफा है। वो अपने कलाम को नाजिल करके शिफा को जारी कर देता है। आज वो सब शिफा लेके जाए। मैं नहीं
जानती डॉक्टर क्या कहते हैं, मैं नहीं जानती कि वो किन दुखों से जा रहे हैं, मैं पर यही जानती कि अगर आज ये कलाम लेंगे तो आप सब शिफा पाएंगे, रूहानी दुनियावी हर तरह की शिफा को आज लेके जाएं, क्योंकि खुदा ने कहा मैं तुम्हें मुफ्त देता हूँ, मुफ्त ले लो। लंगर होते हैं तो लोग भागते हैं वहाँ पे रोटियां लेने के लिए, तो यहाँ भी आ जाओ ना, ये भी खा लो, ये दुनिया के कोने तक पहुँचा दो ताकि लोग इस रोटी को खाएं और शेर हो और उसके नाम को जलाल दे। प्रेज द लॉर्ड। खुदाम जी मैं आपका शुक्र करती हूँ, आपकी हजूरी के लिए, आपकी मामूरी के लिए शुक्र करती हूँ बाप जी। इस वक्त जो भी आपने कलाम दिया खुदाम जी, मैंने ईमानदारी से वफादारी से खुदावन जी इसे पहुँचा दिया है ताकि ये दुनिया के कोने तक पहुँचे, ताकि सारे आपके लोग बचाए जाएं, आपके बेटे बेटियां निजात पाएं और उन फलों को जो आप उन्हें देते हैं उन्हें सही तरह से परवान चढ़ाएं, ताकि सिर्फ आपके नाम को जलाल मिलता रहे। यीशु नाम से हमने मांगा और पाया है, आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी और हम हमेशा अपने खुदावन के घर में सुकूनत करेंगे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू ऑल।